First Chronicles chapter 16 verse 11. Look to the Lord and his strength. Seek his face always. पहला इतिहास 16 का 11 कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। Do you want a relationship with Jesus Christ? क्या आप यीशु मसीह के साथ एक रिश्ता चाहते हैं? Then you need to spend time with him. फिर आपको उसके साथ समय बिताने की जरूरत है, Just like you would with another person if you wanted that relationship. ठीक वैसे ही जैसे आप एक दूसरे व्यक्ति के साथ अगर आप उस रिश्ते को चाहते हो। And as Christians, we do that through prayer and also through reading scripture. और मसीही होने के नाते हम प्रार्थना और वचन पढ़ने के साथ उसे निभाते हैं। Prayer is not some fancy thing trying to use high-flown words to address God. प्रार्थना कुछ काल्पनिक चीज नहीं है जो परमेश्वर को संबोधित करने के लिए उच्च प्रवाह वाले शब्दों का उपयोग करने की कोशिश करती है। Prayer is merely a conversation with God as a friend. प्रार्थना केवल एक मित्र के रूप में परमेश्वर के साथ बातचीत है। That is where we hear God speak to us. वहाँ पर हम परमेश्वर को बात करते हुए सुनते हैं। Then another way to spend time with Christ is a corporate worship. फिर मसीह के साथ समय बिताना का एक और तरीका आराधना है। Another way to spend time with Christ is to be involved in ministry. दूसरा तरीका मसीह के साथ समय बिताना सेवकाई में भाग लेना है। When you and I do that, what happens? जब मैं और आप ये करते हैं, क्या होता है? We are merely going where Christ is going. हम केवल वहाँ जा रहे हैं जहाँ मसीह जा रहे हैं। Getting involved in what he is already doing out there in the world. और जो कुछ इस दुनिया में उनके द्वारा हो रहा है उसमें भाग ले रहे हैं। Your relationship with Christ needs to be nurtured just like any other relationship. मसीह के साथ आपके रिश्ते को किसी अन्य रिश्ते के तरह ही पोषित करने की जरूरत है। Sometimes people say, God seems so far away. कभी कभी लोग कहते हैं परमेश्वर कितना दूर लगता है। Do you know why? आप जानते हो क्यों? Think about our prayer time. हमारे उस प्रार्थना के समय के बारे में सोचो। Oh, well, I don't have one. ओ अच्छा, मेरे पास तो एक है ही नहीं। Think for just a moment about your best friend. बस एक क्षण के लिए अपने सबसे अच्छे मित्र के बारे में सोचो। Or maybe your wife or husband. या फिर आपके पति या पत्नी। Who is it that means the most to your life? ये या कौन है जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है? Your dearest relationship. आपका सबसे प्यारा रिश्ता। Picture that in your mind. अपने दिमाग में इसका एक चित्र बनाओ। Now let us say for the next 6 months you have made a decision. You are not going to talk to that person. अब चलो हम ये कहते हैं अगले 6 महीने के लिए आपने एक निर्णय को लिया, आप उस व्यक्ति से बात नहीं करोगे। And you have made a decision. You are not going to respond when they talk to you for the next 6 months. और आपने एक निर्णय को लिया है जब वो आपसे अगले 6 महीने के लिए बात करने की कोशिश करेंगे, आप उनको जवाब भी नहीं दोगे। Hit the fast forward button. सबसे तेजी गति में आगे जाने वाले उस बटन को दबाओ। 6 months. 6 महीना। What is that relationship like? ये कैसा रिश्ता है? Why do we think it is anyway different from Christ? हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये मसीह से भी अलग है? Except it is a whole lot different because Christ is infinitely more gracious and merciful than our wives, husbands or best friends. इसके अलावा ये पूरी तरह से अलग है क्योंकि हमारी पत्नी,
पति या सबसे अच्छे दोस्तों की तुलना में मसीह असीम रूप से अधिक दयालु और कृपालु है। When you and I come to know Jesus Christ, जब आप और मैं यीशु मसीह को जानते हैं, when we encounter the living Christ, जब हम जीवित मसीह का सामना करते हैं, we are able to exclaim with awe and adoration, तो हम विस्मय और आराधना के साथ बहने में सक्षम होते हैं। now I know there is a God in heaven. अब मुझे पता है कि स्वर्ग में एक परमेश्वर है। More than that, you and I are able to say, I know that God, through a personal relationship with Jesus as the Lord and as God, उससे भी ज्यादा मैं और आप ये कह सकते हैं, मैं जानता हूँ कि प्रभु मसीह के साथ आपने व्यक्तिगत रिश्ते में प्रभु परमेश्वर है। when you come to know Jesus, you come to know God. जब आप यीशु को जानोगे, आप प्रभु को भी जानोगे। Faith is nothing less than a personal relationship with Jesus. विश्वास यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ते से कम नहीं है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, you are the one I adore. आप ही हो जो मैं मानता हूँ। I sing my praises to you and I thank you for your love. मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ और आपके प्यार के लिए धन्यवाद देता हूँ। I come to you for help because I know you can deliver me. मैं आपके पास सहायता के लिए आता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे छुड़ाओगे। In Jesus' name, Amen. यीशु मसीह के नाम में आमीन। First Chronicles chapter 6.